Hello students, how are you all? I hope you all are fine and staying home safely. So students, myself your computer and GK teachers from LPM Public School which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So students, in previous video we have done the revision on chapter working in MS Word. We have done revision on some subtopics, that is Word 2016 window, then typing text in a document, editing text. In that we have done on selecting text using mouses. In selecting text using mouses we have two methods to select the text, that is dragging method and clicking method. Now after that we have studied about how to select by clicking, by dragging method and by clicking method. Okay. After we have studied about selecting text using keyboard. In that we have learned about some topic, that is one characters. Okay, then left to the cursor and one character or a word, right to the cursor, one line up. Today we are going to study about remaining some functions. We are going to study about the remaining some selects with saying the keyboard, remaining some selecting text using by the keyboard. So let's start. One line down. Suppose we want to select in our, we have typed a text, a paragraph. On that where is our cursor is there, we want to select one line. That means suppose हमारा cursor जहाँ पे है उससे नीचे की लाइन को हम लाइन्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वन लाइन हो या मोर देन 2 or 3 लाइन्स हो, that is called known as multiple lines. If you want to select, we can press and hold shift plus down arrow. हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डाउन एरो को प्रेस करके होल्ड करके हमारा जो कर्सर है उसके नीचे की जो भी लाइनें हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, बाय दिस वी कैन select, we can use shortcut key, that is shift plus down arrow. After that come to the next, that is till the end of the current line. Till the end of the current line. Suppose हम जो है जो भी करंट लाइन से लेके लास्ट तक जहाँ भी हमारा कर्सर है लास्ट लाइन तक एंड तक अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर डेट वी हैविंग द शॉर्टकट की, डेट इज शिफ्ट प्लस एंड, डेट इज shift plus hand. With the help of key combination shift plus and we can select the text till the end of the current line. Okay, after that come to the next, that is till the beginning of the current line. Till the beginning of the current line. Suppose हम जहाँ पे current line पे हमारा जो कर्सर है वहाँ से स्टार्टिंग के में जहाँ तक से स्टार्ट किया था हमें वहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो फॉर डेट वी हैव द शॉर्टकट की, डेट इज शिफ्ट प्लस होम की. शिफ्ट प्लस होम की, द शिफ्ट प्लस होम combination key help us to select the text till the beginning of the current line. Till the beginning of the current line. After that next come here to the end of the documents. मीन्स जो हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो हमने जो भी हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, हमें सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के एंड तक अगर हमें सेलेक्ट करना है, जहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट है उस कर्सर पॉइंट से हमें डॉक्यूमेंट के एंड तक में सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? वी टेक द की कॉम्बिनेशन शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड. We take shift plus control plus and with the help of key combination shift plus control plus and we can select the text to the end of the document. And suppose now next come here, we want to select the text to the beginning of the document. To the beginning of the document means हमारा जो कर्सर पॉइंट जहाँ पर है वहाँ से हम पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट के जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनिंग की हमने बिगिन किया था वहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है, तो वी कैन यूज़ द कॉम्बिनेशन की शिफ्ट
plus control plus home. With the help of combination key shift plus control plus home, we can select the text to the beginning of the document. So these are the shortcut keys which we are used by which we can select the text with the help of keyboards. Now come to the last one, that is the entire document. Suppose we want to select a complete whole entire document, how much we have prepared. So for that we have used the shortcut key Control plus A. Control plus A is the shortcut key by which we can select the entire document. After that come to the next, that is inserting text. Next topic is what? Inserting text. See here in this inserting text in a document means adding new text. Inserting text in a document means adding new text between the existing text. इंसर्टिंग टेक्स्ट का मतलब होता है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि हम कोई न्यू टेक्स्ट अगर अपने टेक्स्ट के बीच में बिटवीन में एंटर करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं टू इंसर्ट टेक्स्ट इज नोन एज इंसर्टिंग टेक्स्ट. ओके, सपोज अगर हम ऐसा कुछ है कि हमारे जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं उसके बीच में बिटवीन में हमारे टेक्स्ट के बिटवीन में बीच में हम कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो फॉर डेट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसे फॉलो करना है. विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट. हियर फर्स्ट वन इज Bring the pointer to the position where you wish to insert the new text. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने माउस पॉइंटर को उस टेक्स्ट में उस जगह पर लाएंगे जहाँ पर हम टेक्स्ट को इंसर्ट करना, जहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि उसके बीच में ऐड करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं. ओके, आफ्टर डेट क्लिक द माउस और वहाँ पर लाके हम माउस पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम माउस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका उस प्लेस पे आपके माउस का कर्सर पॉइंटर जो है तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वहाँ पे कर्सर पॉइंट जो है अपीयर हो जाएगा. आफ्टर दैट जैसे ही कर्सर पॉइंटर वहाँ पे शो करने लगेगा स्टार्ट टाइपिंग इन द न्यू टेक्स्ट, तो हम तुरंत वहाँ पे जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं उसको टाइप करने लगेंगे. एज द न्यू टेक्स्ट इज इंसर्टेड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट. और जैसे जैसे हम टेक्स्ट को टाइप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो टेक्स्ट जो है अपने आप आगे आगे शिफ्ट होता राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. ओके, सी हियर आई विल शो यू. आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट, दैट इज see here I will show you. This is the text we have typed here and we want to add a new text here after the word soldier. So we have put your cursor here. जैसे आप माउस को यहाँ कर्सर ला के यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग शो करेगा, जिसे लाइक अ ब्लिंकिंग. ऐसे वहाँ से हम टेक्स्ट टाइप करेंगे. सपोज वी आर टाइपिंग शी वुडंट फील like a princess sitting closer to those stars. हमने ये टेक्स्ट जो है इसके बाद टाइप किया. जब हमने ये टेक्स्ट टाइप किया सी ईयर वन आफ्टरनून पापा ऑटोमेटिकली अपने आप जो है आपके आगे के जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ मूव होते जाएंगे. सो बाय दिस यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट. After that next come to the next one, that is inserting text using overtype. Okay, inserting text using overtype. See here by using overtype how we can insert the text. In this, to activate overtype mode, if the insert or overtype button is not visible on the status bar, then do the following. अगर हमें सबसे पहले अगर हम ओवर टाइप का यूज़ करके टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ओवर टाइप मोड को एक्टिव करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें ओवर टाइप मोड को एक्टिव करना है. इफ़ द इंसर्ट
और ओवर टाइप बटन इज़ नॉट विजिबल। सपोज इंसर्ट या फिर ओवर टाइप बटन जो है आपके स्टेटस बार पे विजिबल नहीं है। सपोज आपके स्टेटस बार पे विजिबल इंसर्ट या फिर ओवर टाइप बटन जो है इज़ नॉट विजिबल ऑन द स्टेटस बार। अगर स्टेटस बार पे हमें इंसर्ट या फिर ओवर टाइप बटन विजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? सी सब व्हाट वी डू, फर्स्ट वी विल राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार। सबसे पहले हम इस स्टेटस बार पे क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कस्टमाइज स्टेटस बार प्रॉम्प्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कस्टमाइज स्टेटस बार प्रॉम्प्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सी हियर, आई विल सी यू, सी हियर, ओके। सी दिस इज द कस्टमाइज स्टेटस बार। इस तरह का एक कस्टमाइज स्टेटस बार प्रॉम्प्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट द ओवर टाइप ऑप्शन इन द लिस्ट। ओके, यहाँ से हम ओवर टाइप ऑप्शन जो है लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। एट द राइट एंड ऑफ दिस ऑप्शन इंसर्ट इज डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम राइट में देखेंगे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो करेगा? इंसर्ट शो करेगा। इट मीन्स इंसर्ट मोड इन द डिफ़ॉल्ट मोड इन वर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे वर्ड में इंसर्ट मोड जो है एक डिफ़ॉल्ट मोड है। इंसर्ट मोड क्या है? एक डिफ़ॉल्ट मोड है। ओके, after that then see come here, what you will do then, that is why we can insert text in a document. The insert button appears on the status bar. तो जैसे ही हम उस पर करेंगे तुरंत आपका इंसर्ट बटन जो है स्टेटस बार पे अपीयर हो जाएगा। Then what you will do, you will click on the insert button to change it to over type, to change it into over type. See here, I will show you. Okay, can you get see here? जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे ओवर टाइप मोड में चेंज हो जाएगा। ओके, ये जो है आपका इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट। ओके, सो आफ्टर दैट इंसर्ट मोड अलाउज, सी हियर, क्लिक। जैसे ही हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे वो चेंज होके ओवर टाइप में आ जाएगा। नाउ ऑन द स्टेटस बार, अब जो है आपके स्टेटस बार पे आपका ओवर टाइप बटन अपीयर हो गया इंसर्ट के। अब हमारे स्टेटस बार पे इंसर्ट की जगह पे सी हियर, इन द प्लेस ऑफ इंसर्ट ओवर टाइप बटन अपीयर हो जाएगा। ओके, so difference between insert and over type mode. Can you know what is the difference between insert and over type mode? See here, insert modes allows the new text to be accommodated between the existing text. insert mode जो है हम वो टेक्स्ट के बीच में नया टेक्स्ट इंसर्ट करने में हेल्प करता है। एंड ओवर टाइप मोड जो है क्या करता है? इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू वन। ओवर टाइप मोड जो है हम कोई सेंटेंस को राइट किए हैं और उसके जगह पे दूसरा टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो ओवर टाइप मोड जो है हमें जो टेक्स्ट ऑलरेडी है उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस करने में हमारी मदद करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड ओवर टाइप मोड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज copying text. Next is copying text. In copying text, copy text means making one more copy of the selected text. copying text का मतलब होता है कि एक और कॉपी हमने जो भी टेक्स्ट बनाया है उस सेलेक्टेड टेक्स्ट का एक और कॉपी बनाना। तो कॉपी एंड द पेस्ट कमांड लेट अस क्रिएट एंड प्लेस अ डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट एट द डिजायर्ड पोजीशन। कॉपी और पेस्ट कमांड जो है क्या करता है, हमारा जो भी टेक्स्ट है जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी को कॉपी करता है और उसके दूसरे प्लेस पर पेस्ट करके क्रिएट करता है, शो करता है। तो उसके लिए देयर आर आल्सो सम फंक्शंस टू फॉलो कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट। सी हियर, अगर हम कुछ कॉपी पेस्ट का टेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हमें करने हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप्स वी कैन डू द कॉपी एंड पेस्ट। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। सबसे पहले हम
क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट हमने टाइप करके रखा है पैराग्राफ या फिर 4-5 लाइन्स, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट गो टू द होम टैब। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में हमें कॉपी बटन पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें कॉपी बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। सी हियर, यहाँ पे होम टैब है। होम टैब में हियर इट इज़ क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी बटन पे। किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी बटन पे। कॉपी बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ब्रिंग द पॉइंटर टू द लोकेशन वेयर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट। और उसके बाद जैसे ही कॉपी बटन पे आप क्लिक करोगे उसके बाद हम तुरंत जो है हमारे माउस पॉइंटर को उस जगह पे लाएंगे जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है उसको हम क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। तो उस प्लेस पे लाके वहाँ पे जहाँ पे हम पेस्ट करना है उस प्लेस पे लाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सी हियर कॉपी पेस्ट कमांड इज हियर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे वी विल क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, तुरंत हम क्लिक क्या करेंगे, पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सी हियर दिस इज़ द पेस्ट बटन। हम यहाँ पे पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें ये भी मिलेगा। जैसे हम पेस्ट बटन पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक करेंगे तुरंत ही जो टेक्स्ट हमने कॉपीड किया था वो टेक्स्ट जो है यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। हमारा वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर अपीयर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ये कैसे अपीयर होगा, आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ इट कैन बी कॉपी पेस्ट टू बी अपीयर। फॉर टुडे इज दिस मच ओनली, सो प्लीज गो थ्रू ऑन इट, ओके? And please don't waste your time in playing games and all. Please be concentrate on your studies and complete your works whatever I have done. Also there is a homework. Please search out all the shortcut keys from chapter 7 and write it in the PC copy. Okay, then bye. We will meet you in the next video.